بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حق چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ایک نئی ریئیکشن ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے، اس میں ہم ایک ہندو پنڈت کا بیان سنیں گے جنہوں نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے جس کے بیان نے ہندوستان میں موجود مسلمانوں میں کافی ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی سنیں گے کہ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا بیان ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کا مقصد کسی بھی کمیونٹی کی توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے چینل کا مقصد حق بات اور سچی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں اکثر تصادم چلتا رہتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس تصادم کو ختم کیا جائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ کوسچن آنسر کا سیشن کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور کافی معلوماتی بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے کافی معلومات ہم تک پہنچتی ہے اور بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اسلامک ویڈیو ہو جو آپ چاہتے ہو کہ میں اس پہ ریئیکشن ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ اس ویڈیو کا لنک کمنٹس کے تھرو مجھے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو پہ ریئیکشن ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنا ریویو بھی دوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کے اینڈ میں اپنے کمنٹس کے تھرو اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پورے بھارت میں گو ہتیا بند ہونی چاہیے، ایسا میں بھارت سرکار سے پرارتھنا کرتا ہوں۔ قانونی اپرادھ ہونا چاہیے، گو کی ہتیا کرنے والے کو پھانسی ہونی چاہیے۔ اس سناتن دھرم کے ساتھ اگر آپ نیائے چاہتے ہو تو جس نے سرعام گو ماتا کی ہتیا بازار میں کی ہے اس کو بھی سرعام پھانسی بازار میں ہی دینی چاہیے، تبھی اس کا صحیح پرتیپھل ہمارے سامنے آئے گا۔ میرا نام پرساد ویرنیکر ہے۔ نمسکار نائک صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے، to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, as a means of festival. Hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں، آپ نان ویج کھاتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے۔ آپ کا سوال ہے کون سا مذہب؟ پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا، بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا۔ جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی۔ اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں، سمیہ گراؤنڈ میں۔ لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے، آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں، ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی سٹال دے چکے، یہ ناممکن ہے۔ تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی۔
इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है। हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाजत दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के, जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट
and some to be eaten. अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए. अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते. आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है. इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे. वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का. जी तो नाज़रीन, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी तो वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इस वीडियो में जो मसला डिस्कस हो रहा था ये वाकई में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मसला है. यानी हिंदुस्तान में इस मसले के ऊपर हिंदू और मुसलमान आपस में अक्सर तसादुम करते रहते हैं. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताया. जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक ने दांतों के बारे में बताया कि जो मतलब गोश्त खाते हैं उनके दांतों का डिजाइन अलग होता है और जो सब्जियां खाते हैं उनके दांतों का डिजाइन अलग होता है. तो अल्लाह ताला ने इंसान के दांत ऐसे तरीके से बनाए यानी फ्लैट और नोकीले ताकि वो गोश्त भी खा सके और वो सब्जियां भी खा सके. फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मैदे के बारे में बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान के मैदे में ये क्वालिटी रखी है कि वो गोश्त को भी हजम कर सकता है और वो सब्जियों को भी हजम कर सकता है. यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरीके से डिजाइन किया है उससे साफ पता चलता है कि अल्लाह ताला खुद चाहता है और अल्लाह ताला की यही मर्जी है कि अल्लाह ताला की मखलूक यानी इंसान गोश्त भी खाएंगे और सब्जियां भी खाएंगे. तो वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना सिर्फ कुरान का हवाला देकर सबूत फराहम किए गोश्त खाने के हवाले से बल्कि हिंदुइज्म की किताबों का भी हवाला दिया. क्योंकि ये लड़का जो सवाल कर रहा था बेसिकली ये हिंदू था और स्टार्ट में जो पंडित का क्लिप था तो वो भी हिंदू पंडित थे और वो अपने लोगों को गलत रास्ते पे बहका रहे थे. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ना सिर्फ कुरान का हवाला दिया बल्कि हिंदुइज्म का हवाला भी दिया और अच्छे तरीके से उस लड़के को समझाया कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि सारे मज़ाहिब में गोश्त खाना हलाल है. और अल्लाह ताला ने क्योंकि सबको पता है कि सबको बनाने वाला सिर्फ एक ज़ात है लेकिन कुछ लोग गुमराह हो गए हैं और अपने पंडितों और गलत पादरियों के चक्कर में पड़कर गलत रास्तों में चले गए हैं. तो बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक की क्वालिटी ही यही है कि जो भी गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछता है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ना सिर्फ कुरान का हवाला देता है बल्कि वो बंदा जिस मजहब से बिलोंग करता है उसी के मजहब से उसको दलीलें फराहम करके अच्छे तरीके से समझाता है ताकि उसको समझने में आसानी हो. इस मसले के ऊपर हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू और मुसलमानों के बीच में तसादुम चलता रहता है. यानी अगर कोई मुस्लिम कुर्बानी के दिनों में किसी गाय को ज़बह कर दे तो हिंदू उस पर तशद्दुद करने पहुंच जाते हैं और अगर उनको मना किया जाए तो फिर मुसलमान भी आगे खड़े हो जाते हैं कि हमारे अल्लाह ताला ने हमें गोश्त खाने की इजाजत दी है और गाय हमारी भगवान नहीं है, गाय को हम भगवान नहीं मानते और गाय का गोश्त खाना हमारे लिए ऐसा ही है जैसा कि बाकी हलाल जानवरों का गोश्त खाना. तो अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी है तो हम क्यों ना खाएं. तो इस मसले के ऊपर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफी तसादुम चलता रहता है. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुरान का हवाला देकर और हिंदुइज्म की किताबों का हवाला देकर बहुत अच्छे तरीके से समझाया. और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि टाइम कम होने की वजह से वो ज्यादा दलीलें पेश नहीं कर सके लेकिन जितनी दलीलें भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने पेश की समझने वालों के लिए और हक की तलाश करने वालों के लिए ये दलीलें काफी थी. तो ओवरऑल तो वीडियो मुझे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी. आप लोग का वीडियो के बारे में क्या ख्याल है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा. वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे. आपसे गुजारिश है कि अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसी इस्लामिक वीडियो हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं रिएक्शन वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूं और उस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू दूं तो आप वो वीडियो मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं. मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उस वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर भी करूं और उस वीडियो के बारे में अपना रिव्यू भी दूं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.